Okay, what can you see on the screen? So I the hope previous question. yes. This is presentation screen is visible. Yes, sir. Okay, and okay, what is the first adjustment we had marked? The capital. Interest on capital adjustment we had marked against capital. Then second one, Interest on drawings. this we had marked against drawings. Third, Goods costing 4,000. So purchases. purchases के against we had marked third. Fourth, Purchases and plant and machinery. yes, very good. Purchases as well as plant and machinery. It relates to both. Fifth one, So it's not given in trial balance. yes, nothing related is given in trial balance, so we did not mark this one. Okay, now let's start. First item given capital. Where is it to be shown? Balance sheet liabilities. Balance sheet liabilities. Yes, good morning, Atishay. So ड्राइंग्स का कैपिटल की फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है अतिशय? interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ विल इट बी ट्रीटेड? Sir, firstly, we will add it in the capital by interest on capital on liabilities side and balance sheet. हम्म. And the second treatment would be in profit and loss account in debit side of profit and loss account to interest on capital. Very good. Then Ridhima, what is the next item given? Drawings. Drawings. How to show it? So we subtract from capital in the balance sheet. Yes, very good. We will subtract from capital drawings minus 20,000. And Atishay, what is the second adjustment? Interest on drawings to be charged. Interest on drawings to be charged. Drawings. Okay, so how to show it? Sir, we will just one second. Yes, good morning, Shreya. Good morning, sir. Sir, we will show it on the credit side of profit and loss account and reduce from capital. Very good. Interest on drawing will be subtracted. Amount we had calculated yesterday, it is given at 12% per annum. So 12% per annum of which amount? 20,000, which comes out to 2,400. But drawings were made on 1st October. So it will be 1,200. So 1,200 we have subtracted from the capital, and second effect, Show it on the credit side of profit and loss account. show on the credit side of profit and loss account. Very good. प्रॉफिट लॉस में फर्स्ट लाइन दोनों साइड पे ब्लैंक छोड़ देना डॉट डाल के. रिटर्न. Yes, sir. ओके. श्रेया, नेक्स्ट इज Bills payable. वेयर विल इट कम? Balance sheet liability side. वेरी गुड. बैलेंस शीट
आफ्टर लीविंग वन मोर लाइन, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस अभी एडजस्ट होना है कैपिटल में, तो एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे लायबिलिटीज साइड पे बिल्स पेबल 44,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद एक लाइन में डॉट डाल के छोड़ दो, फिर लिखो बिल्स पेबल 44,000। Then Ridhima, next. Sales, we'll show it on trading account, credit side. Credit side, very good. So trading account, credit side, sales return तो नहीं दिया हुआ बाद में कहीं क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में? नहीं। No, sir. तो फिर सीधा हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 4 लाख। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट अतिशय। Purchases, it will be shown on debit side of trading account. और इसकी एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो वी विल शो द अमाउंट इन इनर कॉलम। टू Inner column. परचेजेस, इनर कॉलम 1,32,000। यहाँ पे एक लाइन छोड़ने की तो जरूरत नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक देखो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में कहीं? No, sir. नहीं दिया हुआ, तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आफ्टर दैट श्रेया। ये सो एडजस्टमेंट की गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज। तो क्या मतलब तो हुआ इसका? चीज से माइनस कर देंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में स्टाफ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट एक्सीलेंट, से। एक्सीलेंट। परचेजेस में से ये गुड्स कम हो गए, क्योंकि इस साल हमारे ये गुड्स तो बिकने नहीं है, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकते। तो परचेज में से लेस कर देंगे, स्टाफ कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस लिख के -4,000। और इस एक्सपेंस को दिखाएंगे हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे, टू स्टाफ कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 4,000। इज देयर एनी प्रियल इन दिस क्लास? 11C में प्रियल तो नहीं है ना कोई? No, sir. तो ये वेटिंग No. रूम, क्या वेटिंग रूम में क्या कर रही है? रिमूव करते हैं इसे। हाँ, उसके बाद रिधिमा नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट है, फोर्थ, परचेज से रिलेटेड, लेकिन Yes, sir. Plan. हाँ, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी से भी रिलेटेड है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा, पहले ये बताओ। Sir, balance sheet asset side. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी। और अब एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है फोर्थ। Goods worth 8,000 and machine worth 12,000 damaged due to flood. Oriental Insurance Company accepted a claim of ₹18,000. तो जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 8,000 के, ये कहाँ पे लेस होंगे? Purchases से लेस हो जाएंगे। वेरी गुड, परचेज में से लेस करेंगे, लॉस बाय फ्लड -8,000। और अब परचेजेस का नेट अमाउंट लिख देंगे अमाउंट कॉलम में 1,20,000। और सर इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फ्लड। अभी रुको, प्लांट एंड मशीनरी में से भी तो पहले लेस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमने एसेट्स में लिखा 30,000 इनर कॉलम में, उसमें से कितना लेस करना है? 12,000। 12,000। सो लॉस बाय फ्लड -12,000 किया उसमें से,
नेट अमाउंट बचा प्लांट एंड मशीनरी का 18,000। अतिशय टोटल लॉस कितना हुआ फ्लड से गुड्स और मशीनरी का मिला के? सर 20,000। 20,000। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया? 18,000। तो बाकी 2,000 का क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय फ्लड। वेरी गुड, द फर्म विल हैव टू बियर दैट लॉस। तो वो 2,000 आ जाएगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। और 18,000 इंश्योरेंस वाला कहां पर आएगा? बैलेंस इनकम नहीं। यस रिधिमा बोलो। सर बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, एब्सोल्युटली राइट। सर क्योंकि वो डेटर बन गया। बिल्कुल। तो हमने एसेट्स में लिखा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ब्रैकेट में लिख लो क्लेम 18,000। इंश्योरेंस कंपनी डेटा थोड़ी बनेगा। एक तरह से डेटर हो गई ना, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द क्लेम, मींस नाउ दे विल पे अस दिस अमाउंट, वी हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम देम। ओके। And the loss that the firm has to bear will be shown in profit and loss account debit side to loss by flood 2,000। ठीक है, तो क्रेडिट में इसके दो इफेक्ट आ गए, परचेज में से लेस हुआ 8,000, मशीनरी में से लेस हुआ 12,000। 20,000 क्रेडिट वाला इफेक्ट आ गया। जो हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस क्लेम दिखाया 18,000 और लॉस बाय फ्लड दिखाया 2,000, ये मिला के 20,000 डेबिट वाला इफेक्ट आ गया। सर दोबारा बताना, अभी क्या बताया आपने? देखो, हमारा जो ये लॉस बाय फ्लड हुआ, इसका क्रेडिट साइड पे, मतलब क्रेडिट इफेक्ट दो हुए। एक तो परचेज में से क्रेडिट हुआ, लॉस बाय फ्लड लेस हुआ 8,000, यस सर। और एक प्लांट एंड मशीनरी में से लेस हुआ 12,000, तो 20,000 क्रेडिट हो गए। यस सर। अब आते हैं डेबिट वाले इफेक्ट्स पे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हमने एसेट्स में दिखाया 18,000 डेबिट, यस सर। और लॉस बाय फ्लड हमने प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखाया 2,000, तो ये ओके सर। 20,000 डेबिट में भी इफेक्ट आ गया। क्लियर? यस सर। ओके अतिशय, नेक्स्ट। सर सैलरीज। सैलरीज वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू सैलरीज 1 लाख। आफ्टर दिस रिधिमा? कैश 12 लाख, सो बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। एसेट्स में कैश 12 लाख। यस श्रेया, नेक्स्ट। बैंक तो फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में 60 लाख। वेरी गुड। बैंक भी एसेट्स में आएगा 60 लाख। इज देयर एनी केशव इन द क्लास? सर नहीं है ना? नो हो सर। No, sir. रिमूव। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट अलाउड।
Discount allowed. Where will it come, Shreya? Profit and loss account debit side. Profit and loss debit side. Absolutely. To discount allowed 500. Ridhima, next. Wages, so trading account debit side 28 to 50. Yes, absolutely right. Trading account, to wages, debit side, 28,250. Atishay, next. So carriage inwards, trading account debit side. Yes, ये भी ट्रेडिंग में आएगा. डेबिट साइड, टू कैरेज इनवर्ड 750. Shreya, next. Bad debts. Hmm, Profit and loss account debit side. very good. Profit and loss account में डेबिट साइड, टू बैड डेट्स 1000. Ridhima, next. Interest received, so profit and loss account credit side 22,000. Excellent. Profit and loss account, credit side, by interest received 22,000. Atishay, next. Stationery, profit and loss account उससे debit पहले side. उससे पहले एक मिस हो गया, अच्छा, इंश्योरेंस. insurance premium. Sir, profit and loss account debit side. Very good. Profit and loss account, debit side, to Debit side. insurance premium 2,500. Shreya, next. Stationery, profit and loss account debit side. Very good. Profit and loss account debit side, to stationery 8,000. Ridhima, next. Creditors balance sheet liability side Very 13,000. yes. Balance sheet liabilities side, creditors 13,000. Ridhima, next. Debtors 20,000, so balance sheet asset side. Very good. Asset side, debtors 20,000. Atishay, next. 15% loan on 5 lakh rupees. So which type loan is it? The firm has taken a loan or firm has given a loan? Firm has taken a loan taken a because it is on credit side. Excellent. Because credit balance is there, it means the firm has taken this loan. अगर डेबिट में दिया होता तो इसका मतलब ये लोन एसेट होता. Firm has given that loan. But here it is credit balance, so that means it's a liability. Taken by the firm. taken by the firm, so it will come in Liabilities side of balance sheet. liabilities side. Very good. 15% loan, 5 lakh. So 15% is the interest rate. Very good. Yes, this is I was just about to ask this कि 15% का क्या मतलब है. अब बताओ, ये हमने पढ़ा था ना implied adjustment. Yes, sir. ये implied adjustment है, तो 15% किस अमाउंट का? 5 lakh का. 5 lakh का. 5 लाख का 10% कितना हुआ श्रेया? 50,000. और उसका हाफ कितना हुआ? 25,000. तो 50 प्लस 25,000, 75,000. 15% हो गया 75,000. अमाउंट निकल आया. अब इसका मतलब इतना इंटरेस्ट ऑन लोन पे होना चाहिए था, राइट? हाँ. अब देखो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है कहीं?
यस सर। हाँ कितना दिया हुआ है? 61,000। 61,000, जबकि हमने कैलकुलेट किया 75,000। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलती है? कि जो बचा 61,000 पेड है, बाकी बच्चा कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो बचा कुचा कितना? हाँ 14,000। 13,000। 14,000 इज आउटस्टैंडिंग, है ना? अब बताओ कैसे शो करेंगे इसे, रिद्धिमा? इन प्रॉफिट एंड अच्छा रिद्धिमा बताओ कैसे शो करेंगे? तो इंटरेस्ट पेड को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डाल देंगे, ठीक है। प्लस आउटस्टैंडिंग 14,000। तो इंटरेस्ट पेड इनर कॉलम में हमने लिखा 61,000। अब आगे बताओ। इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 14,000। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग हमने इसमें ऐड कर दिया, प्लस 14,000, टोटल हो गया 75,000 अमाउंट कॉलम में। और ये जो 14,000 है ये एडजस्टमेंट है, तो इसका सेकंड इफेक्ट। लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 14,000। वेरी गुड। लायबिलिटीज में लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 14,000। सर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों लिख सकते हैं? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लिखने। यस सर। समझ में आ गया ये सबको? यस सर। अतिशय, नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट्स नहीं, उससे 2,50,000। इंटरेस्ट पेड तो हमने कर ही लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हाँ कहाँ पे आएगा? 2 लाख ये सर आएगा एसेट साइड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000। सर एक बार आप 15% लोन वाला दोबारा समझा दोगे? बिल्कुल समझा देंगे। अतिशय, 15% अमाउंट किस पे निकलेगा? 5 लाख पे। 5 लाख पे कितना आया अमाउंट? 75,000। इसका क्या मतलब हुआ? इस लोन पर 75,000 इंटरेस्ट पे होना चाहिए था। इज दैट राइट? यस सर। अब देखो इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है। तो जो 61,000। इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है पहले तो उसे हम प्लेस कर देते हैं प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे, ठीक है। यस सर। 75,000 पे होना था, बट पेड इज 61,000। इट मींस अभी 14,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, उसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? 61,000 में इस 14,000 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी इसी साल का एक्सपेंस है, बेशक पे नहीं हुआ। ओके सर। और ये लायबिलिटी भी है, क्योंकि पे होना है अभी, तो लायबिलिटीज में भी शो कर देंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 14,000। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। श्रेया, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ देखो, हो गई है क्या? हाँ सेकंड, हाँ थर्ड, हो गया। फोर्थ, हाँ फिफ्थ। फिफ्थ नहीं हुई। फिफ्थ नहीं हुई, चलो फिफ्थ पढ़ो फिर। Manager commission is payable at the rate 20% of net profit after charging such commission. तो क्या करना होगा इसके लिए? पहले प्रॉफिट निकालना होगा रफ में, फिर हाँ, उसका कौन सा प्रॉफिट? उसको ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना निकालना होगा, पड़ेगा। है ना। ट्रेडिंग अकाउंट को हाँ क्लोज करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, हाँ क्रेडिट में तो एक ही अमाउंट है 4 लाख। डेबिट में कितना टोटल है? 1,50,000 नहीं 1,49,000। 49,000। हाँ वेरी वन गुड। लाख कोई ना। डिफरेंस डिफरेंस कितना हुआ? 2,51,000। तो ये कहाँ पे आएगा, कौन सी साइड पे? ये डेबिट साइड साइड पे। पे।
डेबिट साइड पे, और क्या लिखेंगे श्रेया इसे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,51,000। दोनों साइड पे टोटल लिखो, टोटल के ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन विद पेन। ओके। रिधिमा, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कहां पर ट्रांसफर होगा? Profit and loss account credit side by gross profit. यस, वेरी गुड। प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,51,000, और डेबिट साइड पे जो ब्लैंक लाइन छोड़ी थी उसमें डैश डाल दो पर्टिकुलर्स और अमाउंट में। अब बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,74,200. 2,74,200। ओके। और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, करो रफ में जरा। 2,66,750. ओके, सो हाउ मच इज द डिफरेंस? सब लोग करो कैलकुलेट। हाउ मच इज द डिफरेंस, टेल मी। 7,450. 6,450 इज द डिफरेंस। ठीक है, तो अब वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेट करेंगे मैनेजर्स कमीशन। श्रेया, फॉर्मूला क्या होगा? 10/110 इन नहीं सॉरी कितना परसेंट है 20%। 20/120 इंटू 6450। वेरी गुड। वर्किंग नोट्स में लिख लो, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स 20/120 इंटू 6450। अभी नेट प्रॉफिट वैसे लिखेंगे तो नहीं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आया था। नहीं, अभी नहीं लिखेंगे ना, वो तो इसके बाद, इसको भी लेस करने के बाद आएगा। अमाउंट कितना आया 20/120 ऑफ 6450, बताओ। सर वर्किंग नोट बनाना कहाँ पे है? नीचे बना लो जहां पे जगह हो। अगर प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट के बीच में जगह है वहां बना लो, नहीं तो बैलेंस शीट के बाद बना लो। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है 20/120, मतलब 1/6 हो गया। Yes, sir. 1/6 ऑफ 6450। Sir, 1075। 173 point. एक मिनट। हाँ जी, खुश बोलो। सर आंसर बताना था। हाँ बताओ। सर 1075। ओके, वेरी गुड। तो अब हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 1075। और खुश, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? क्या हुआ? खुश को मैंने किया तो है अनम्यूट। यस सर, अब हुआ है अनम्यूट। ओके, बताओ। सर बैलेंस शीट में आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा। वेरी गुड। लाइबिलिटीज में और लिखेंगे क्या? मैनेजर कमीशन पेबल। एक्सीलेंट। लाइबिलिटीज में लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन पेबल 1075। अगर मैनेजर्स कमीशन पेबल नहीं लिखा होता तो फिर नहीं आता ना लाइबिलिटी साइड में। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो नहीं आता ऑब्वियसली। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करते।
क्या एडजस्टमेंट में क्या वर्डिंग होती है ये बताओ ना। कि तुम कह रही हो 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ यू आर सेइंग एडजस्टमेंट में बस पेबल वर्ड नहीं दिया होता, मैनेजर कमीशन लिखा होता सिर्फ, हाँ। तब भी यही होता। क्योंकि एडजस्टमेंट है तो उसका डबल इफेक्ट तो जाना ही है। सर तो और वो कैश में से चार्ज माइनस करते हैं। इसलिए मतलब नहीं, दी नहीं है अभी। कैश में से तभी माइनस करेंगे अगर क्लियरली लिखा होता मैनेजर्स कमीशन पेड, वॉज पेड बट नॉट रिकॉर्डेड। अगर इस तरह का होता ना, पेड वर्ड लिखा होता, तो कैश में से या बैंक में से माइनस करते। जब पेड नहीं लिखा तो हम एज्यूम करेंगे वो आउटस्टैंडिंग ही है। ठीक क्योंकि है। वो ट्रायल ओके बैलेंस को बाहर दे रखा है तो इसलिए ज्यूम करेंगे कि हमें दी नहीं है। जी जी। ओके। ट्रायल बैलेंस के बाहर भी लेकिन अगर पेड वर्ड लिखा हो तब तो हमें ठीक है। मानना पड़ेगा ना कि पेड है, तब हम उसे एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, दूसरा कैश या बैंक में से लेस कर देंगे। ओके सर। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना बचा 6450 में से, ये 1075 भी माइनस कर दो। रिधिमा बताओ कितना बचा। सर प्लीज वेट। हाँ श्योर। 6450 तक तो हम निकाल ही चुके थे, 1075 उसमें से और लेस करना है। सर 5395। रिधिमा सर कैन आई गिव द आंसर? ओके, खुश बोलो। सर नेट प्रॉफिट आएगा 5375। ओके, वेरी गुड। सो नेट प्रॉफिट इज 5375। टोटल इज 2,74,200। टोटल के ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। ये इसमें पता नहीं स्लाइड शो में नीचे डबल लाइन की जगह सिंगल क्यों शो करता है, मैंने डबल डाली होती है। एनीवे उसके, और ये पेन से डालनी है लाइंस। ये नेट प्रॉफिट अब कहां पे जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल में ऐड होगा, वेरी गुड। तो कैपिटल में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट प्लस 5375, और अब टोटल कर देंगे, कैपिटल का नेट अमाउंट निकाल लेंगे, सब प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट्स हैं करके। और नेट अमाउंट आ रहा है कैपिटल का कितना? हम्म। 6933925। एक्सीलेंट, 69,33,925। अब टोटल करो बैलेंस शीट का, एसेट साइड से भी लायबिलिटीज साइड से भी, और बताओ कितना आ रहा है। अतिशय तुम लायबिलिटीज साइड से करो, रिधिमा एसेट ओके साइड सर। से करो, श्रेया तुम दोनों साइड से करो। जी सर। बाकी सब भी करो, दोनों साइड का टोटल। सर मुझे अपनी लाइबिलिटीज बोला है ना। हम्म। यस जी आप। Sir, asset side is coming out to be 75 lakh 6,000. ओके, सर लाइबिलिटी का मैं बता दूं? बता दो। सर 7506000, 75 lakh 6,000 ओके, वेरी सेम गुड, है। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू एब्सोल्युटली करेक्ट। 75,06,000 टोटल आ रहा है दोनों साइड्स का। ठीक है।
अब इस चैप्टर के बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करोगे बुक से कंप्लीट। एल्मेनाक में लिख लो अपनी। हाँ जी गौरीश बोलो। सर 1075 मैनेजर कमीशन कैसे आई, ये वाला समझ नहीं आया पॉइंट। वेरी गुड, बहुत जल्दी याद आया। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था गौरीश? सर म्यूट हो गया था मेरा। हाँ बोलो, क्या था ग्रॉस प्रॉफिट? सर 251000। ठीक है, ये निकालने के बाद हमने प्रॉफिट लॉस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया और उनका हाँ जी। डिफरेंस निकाला कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, रफ में निकाला था। वो आया था 6450। हाँ जी। ठीक है, तुमने पिछली क्लास शायद मिस करी थी इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया, ये हमने एडजस्टमेंट पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो 6450, अब ये क्वेश्चन क्या रहा है, मैनेजर्स कमीशन इज 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट। मतलब 6450 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 जो हो गया 120। तो 6450 का 20 अपॉन 120 हमने किया था, तब ये अमाउंट आया। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर डाउट एनीवन? ओके, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। क्लास में तो अभी टाइम है, नेक्स्ट शुरू करते हैं टॉपिक।